Hello guys. Okay, so I didn't expect you guys to already be here. Thank you for joining early. If any of you have any questions, we have 15 minutes. You can literally ask me anything. तो एक बार मैं क्विक साउंड और माइक चेक कर लेता हूँ. Visual check. I hope you all can see my screen, right? Some of you please, if you could just confirm. आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, right? अनुपम, नमिता, मनीष, any of you, can you please confirm? मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, दिख रहा है. Thank you. Namita, you're from Anahita Bajoria's. हाँ जी. Okay, great. Okay, I could recognize the company name. I hope you guys are doing well. So, guys, we still have what 13 minutes, and maybe I'll have to give people another 5 minutes before they join in. So, open offer to three of you. अगर आप में से किसी का भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है गूगल शीट में, एक्सेल में, जहाँ पे आपको लगता है मैं हेल्प कर पाऊंगा, I can actually help you guys right now. You can share your screen if you like. I can, help you with any practical problems, any repetitive issues that you guys are facing. I can try and help you guys right now. So open offer to anybody who wants to take it up because you guys are here early. So I respect that. और अगर कोई भी क्वेश्चन हो एक्सेल रिलेटेड, गूगल शीट रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू इवन maybe some bit of management, I could help. To just let you guys know a little bit about myself, my name is Abhishek Bose. I have been working with Mr. Sanjeev Jain for the past about 1.5 years now. I have a total of 16 years of work experience. I have worked with companies like Hewlett Packard, IBM, Ogilvy and Mather, Indian companies like Royal Infraconstru and Mystic Ventures before joining Sanjeev sir. So I have in the first stint of my journey with Sanjeev Jain, I have been full time senior consultant where I took care of a lot of consulting projects that we could not address with our tools. So
but eventually we saw that that business wasn't very profitable for us. So we have shifted into training and making standard tools which applies for everybody. Like we have the advanced flow monitoring system, if any of you are aware of. So that is what we have right now. Also, since I have the time and there are no questions, I would like to take a moment right now to also talk about apna upcoming Tech Alumni. I believe some of you are already part of Tech Alumni, and the next Tech Alumni is happening on the 18th of December. It will happen both online and offline. So if you guys are part of our Tech Alumni, please consider registering for it. Just give me a moment. I could also maybe share the Tech Alumni registration links to all of you. हमने इस बार टेक एलुमनाई में काफी तगड़ा चीज लॉन्च करने वाले हैं. दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी, अगर आपके पास मल्टीपल वेंडर्स हैं, ठीक है, आप लोग कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? सो 10 वेंडर से आपको कोटेशन मंगवाना है. फिर उसके बाद आप लोगों को उसको एनालाइज करना पड़ता है कि किसका सबसे कम रेट है या टर्म्स फेवरेबल है, ठीक है? तो ये चीज फिजिकली करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको काफी लोगों के साथ फॉलो अप भी करना पड़ता है, फिर रेट कंपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद पीओ बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप अवार्ड करोगे, राइट? और अवार्ड करने के बाद भी वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट. बट the basic idea of this flow monitoring system that we are going to deploy this Tech Alumni session, उसमें हमारे पास, आपके पास एक ऑप्शन, हम एक ऑप्शन देंगे आपको कि आपके पास सबसे पहले सप्लाई या डेटाबेस बनेगा, ठीक है? उसके बाद आपका खुद का प्रोडक्ट का डेटाबेस बनेगा. यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रेज अ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फॉर अ सेलेक्ट सेट ऑफ वेंडर्स, और उनके पास ऑटोमेटिकली मेल चले जाएंगे. जब वो रिक्वेस्ट भर के जो प्राइसेस हैं उनके भर के आपके पास वापस सबमिट करेंगे, तब उनके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, मेल आएगा ऑटोमेटिक, और आपके पास भी एक इंटीमेशन आएगा कि दिस वेंडर हैज फिल्ड दिस पर्टिकुलर रेट. Also, what we will do is we will basically allow you all to compare the rates based on the lowest value, either be it at a product level or at an entire quote level, ठीक है? After that, we can also have your purchase manager approve which vendor is going to be selected for that particular PO. And once he selects and puts in his ID password, automatically the PO can be sent out to that particular vendor. So it's going to be pretty good. If you guys are going to be part of this upcoming Tech Alumni. मैं एक बार, अगर मेरे पास, यस, टेक एलुमनाई का मेरे पास जो टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट आप लोगों के लिए एक बार यहाँ पे चैट पे डाल देता हूँ. So there is limited number of characters that's possible on the chat. Let me break that up and put this in the chat. If any of you are interested to know more, please let me know, or let our team know basically. यहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स आप लोगों के लिए डाल दिया. Nobody has any questions? Come on guys, open up. Please feel free to ask. Satish, good to have you here again. आज तो बेसिक आपके लिए बहुत ही बेसिक टॉपिक होने वाला है.
Okay, so I think guys we can start now. It's 2:30. I did an initial round of checks. I hope you all can still see my screen and hear me clearly. uh, आप में से अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है regarding understanding today's session that we'll be covering, आप मुझे कभी भी पॉज कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स काफी बेसिक हैं। ठीक है, बट अगर एक चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इट माइट हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम बेसिक से चालू कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पे जाके कोई भी दिक्कत आ रहा है, फील फ्री टू पॉज मी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली ये जो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, बेसिकली हमारा टेक मास्टरी एडवांस बोल के। ठीक है, ये एक साल भर का प्रोग्राम रहता है और इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को काफी सारा ट्रेनिंग्स, टूल्स, एज वेल एज फिजिकल वन टू वन सेशंस भी आप लोगों को मिल जाते हैं इसमें। one of the things that we do in this kind of trainings is a DME program। ठीक है, इस DME प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि हम आपके जो डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनको हम एक एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस पे बुलाते हैं। बेसिकली ये एक 7 दिन का सेशन होता है, 4 आवर्स ईच। ठीक है, तो उसमें हम उन लोगों को स्क्रैच से मल्टीपल टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। आई कैन क्विकली show you all the list of topics that we cover. So just give me a second. So यहाँ पे देखिए, on the day 1 we basically start with database structures and security. फिर हमारे पास डे 2 और डे 3 में काफी सारे फॉर्मूलाज के बारे में हम बात करते हैं, which are all here. There are some really important ones like array functions and query. We also talk about all these functions in detail. ठीक है ना, we do not leave anything to chance here. So maybe I could give you guys some examples of how detailed we go into at some point of time today. ठीक है, उसके बाद हमारा डे 4 में रहता है मल्टीपल एड-ऑन्स। ठीक है, गूगल जो शीट्स हैं, गूगल शीट्स में ही आपके पास मल्टीपल ना एड-ऑन्स का ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, which can help you automatically send like a PDF which will get created from the Google sheet when somebody fills a form, let's say, or you can manage your approval mechanism through add-ons like Formule। ठीक है, ये काफी सारा इंटरेस्टिंग हमारे पास इंटरेस्टिंग एज वेल एज एफिशिएंट और वेरी पर्टिनेंट एड-ऑन्स है हमारे पास यहाँ पे, जो कि हम बात करते हैं। उसके बाद 5th डे में वी टॉक अबाउट द FMS। ठीक है ना, फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें आप लोगों का जो प्लान्ड और एक्चुअल टाइम होता है आपका प्रोसेस का, उसको कैसे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, उसको कैसे आप इफेक्टिवली रिपोर्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज हम डे 5 में आपको सिखाते हैं। वी ऑल्सो गिव यू गाइज सम स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, बट प्लीज डू नॉट confuse this with the advanced version of FMS that we have, which is a completely web-based FMS which is integrated with WhatsApp and everything else. In the DME workshop, we cannot obviously teach you that because that has close to 17,000 lines of code and everything else. That's a completely different thing. Day 6 में we talk about MISs, Data Studio, pivots and slicers, charts and stuff. And day 7 में we basically have a closing session where we share our experiences. We share sheets with each other, best practices जो भी आप बोल लो, and we also have a test जिसके एंड में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, which will have your scores on it, which also tells you at what level you are. So in the industry, that certificate, touchwood, is being demanded from
by the business owners from DMEs. If they do not have it, they need to at least have the acumen to understand what we are talking about here, so that our clients can basically take you on board and give you a couple of months time, and then get you trained on our systems. So that is one thing that is going well for us. If any of you who are not part of Tech Mastery Advanced, and you want to know more about these courses, okay, आप प्लीज इस नंबर पे कॉल करके आप जान सकते हैं, ठीक है. The price of this DME course is 14,995, 14,995 rupees. But if you are obviously part of our tech alumni, sorry, Tech Mastery Advance, then it is free for you guys. Like this particular workshop also. आज के जो वर्कशॉप में हम जो वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, यू कैन ऑल get to this particular website by going to this site. मैं ये वाला chat में डालने वाला हूँ अभी. So those of you who are part of our Tech Mastery Advanced program, ठीक है, आपके सबके डोमेन में इस वाली जो लिंक है, इस लिंक का एक्सेस आपके पास होगा. At any point of time, you all can go to your browsers, and if you're logged into your domain, you will be able to access this formula.coitbox.com. आप लोग, you guys might consider, bookmarking this particular site. There are a lot of interesting formulas here. Okay. So over these next few MIS Saturday workshops, what we plan to do is walk you through each of these formulas. Okay. So also we have kept these MIS Saturday sessions open to anybody and everybody, whoever wants to join, because we do feel responsible for the community where we are working as well, until and unless we also help people with their database challenges and develop the community of DMEs. ठीक है ना? We will basically be doing injustice to the entire industry per se. ठीक है, तो this is one reason why we like to do these kind of trainings free. ठीक है, however, the DME one, which is a lot more intensive one, the DME training is a paid one, but we obviously try and do some training or the other जिसमें आप लोगों को benefit हो without actually having to pay something. Now having said that, हमारे पास एक WhatsApp group भी है, ठीक है, which is basically for DMEs. So if you are a business owner, please refrain from joining this group, which we are going to group link, which we are going to put in the chat. ठीक है, but if you are a DME and if you are not part of this particular DME group, feel free to join this group. There are no charges. We do not try and sell anything in these groups. This group is pretty much designed to help each other. ठीक है ना, जैसे कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, या फिर मल्टीपल अदर जैसे साइट्स होते हैं, राइट, वहां पे आप जाके आप खुद सीख सकते हो. बट इट बी ऑब्वियसली नाइस टू कनेक्ट विथ लाइक अ फेटर्निटी ऑफ DMEs, करेक्ट. तो वहां पे क्या होता है कि आप इंस्टेंटली आपका क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, either somebody from the group answers it, or if not, it is my responsibility by the end of the day to definitely answer your question. Nowadays I am a lot more free. Before it used to take me lot of time to actually get to those questions, but nowadays I am much more active in the DME group. So you guys can also connect with me through this WhatsApp group, जिसका मैंने लिंक चैट पे डाल दिए हैं. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस जनरल टॉपिक इन आवर फॉर्मूला का जो हेल्प पेज है. We are going to look at data validation. We are going to look at freezing rows and cells, which must be very simple for a lot of you. Hiding rows and columns, again must be very simple for a lot of you as well.
and useful technique which is called conditional formatting. ये 4 चीज आज हम देखने वाले हैं. बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो एज इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट itself. At any point of time, if any of you have a question, I am right here. You can put it in the chat or you can unmute and also ask me. ठीक है. और इसके बाद में I will also give you guys some more tips which are not covered in the video. ठीक है. Fair enough. If anybody wants to take this up any differently, you can tell me. ठीक है. अच्छा, before I even begin this, I would also like to mention कि हमारा जो लास्ट MIS सैटरडे का वर्कशॉप था, उस लास्ट MIS सैटरडे वर्कशॉप में हमने ये सारा जो टॉपिक है, ये सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है. The link for that is also available here. I will give you guys the link. It's freely available on YouTube. आप लोग इसको बुकमार्क कर सकते हैं. Like save it as a playlist, and if you think we have earned your subscription, please, I hope you guys are subscribed to Sanjeev Jain's channel. We do try and put out really relevant content. Okay, having said that, let's have a look at data validation. Before we start, is there anybody ये ग्रुप में जिन्होंने कभी डेटा वैलिडेशन यूज नहीं किए हो? ठीक है. You do not know what data validation is. आप प्लीज चैट में मी टाइप कीजिए. It will help me address you better. I also need to know कि what is the level of proficiency within this set of people who have joined us today. किसी को बिल्कुल भी नहीं पता डेटा वैलिडेशन क्या है? ठीक है, चलिए. So maybe we can just give me a second. Maybe we can go a little quick on this today. Let's try. हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल शीट या आपके लिए गूगल शीट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है डेटा वैलिडेशन, जो कि आपको काफ़ी यूज में आता है. तो डेटा वैलिडेशन हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि आपने कोई शीट बनाई डेटा एंट्री के लिए और आपने अपने यूजर्स को सेंड कर दिया कि इसमें आप डेटा एंट्री फिल करते आइए. तो उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं शीट पे. रेस्ट्रिक्शन लाइक कि अभी देखिए ये पर्टिकुलर सेल है, नेम का कॉलम है. सो अभी आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं. नेम, आपने नेम टाइप कर दिया, नंबर टाइप, इसमें यहाँ पर आपने नंबर टाइप कर दिया, कोई पर्टिकुलर मार्क टाइप कर दिया. सो इसमें आप देखने अभी आप कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं. बट बेसिकली यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए कि इस कॉलम में पर्सन सिर्फ नेम फिल कर पाए. नेम का मतलब कोई टेक्स्ट फिल कर पाए, कोई नंबर ना फिल कर पाए. सो ये क्या हो गया, आप एक रूल हो गया. तो बेसिकली डेटा वैलिडेशन होता क्या है कि आपने पर्टिकुलर रेंज पे या पर्टिकुलर सेल पे आपने एक रूल सेट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उस रूल के अलावा कोई भी उसके अलावा कोई डेटा यूजर फिल ना कर पाए. यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर रूल सेट कर रखा है कि यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करो तो यूजर ओनली नंबर इनपुट कर पाए और आपका यूजर नंबर के अलावा टेक्स्ट या कुछ और चीज ना यहाँ पे एक्सेप्ट करे. राइट. तो ये आपका क्या हो गया, रूल हो गया. सो डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यहाँ पे सर्च करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मेन्यू ऑप्शन में आपका डेटा यहाँ पर आ रहा है, डेटा मेन्यू आ रहा है, इस पर जाना है. देन उसके बाद आपको डेटा पे क्लिक करना है. यहाँ पर आपको दिखेगा डेटा वैलिडेशन, देख पा रहे होंगे आप डेटा वैलिडेशन यहाँ पे शो कर रहा है. डेटा वैलिडेशन क्लिक करना है आपको. डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर देखते हैं 1 by 1 कौन सा चीज कहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पे यूज होता है. फर्स्ट हम आते हैं लिस्ट फ्रॉम अ रेंज. तो लिस्ट फ्रॉम अ रेंज बेसिकली यूज कहाँ पर आता है, अगर आपको किसी रेंज से ड्रॉप डाउन बनाना है. लेट्स एग्जांपल, हम यहाँ पर अगर यहाँ पर यूजर्स को नेम यहाँ पर टाइप करने हैं, लेट्स सपोज आपके पास नेम ऑलरेडी अवेलेबल है कहीं पर. सो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर ABCDE. सपोज के लिए ये आपके नेम की लिस्ट है और आप चाहते हैं कि यूजर को नेम यहाँ पर टाइप करना पड़े, वो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लें. राइट. तो अब यहाँ पर आप कैसे
ड्रॉप डाउन लगाएंगे यहाँ पर, सेम डेटा प्लान में डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे एंड लिस्ट फ्रॉम रेंज पर सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट फ्रॉम रेंज सबसे पहले हम देखते हैं सेल रेंज, मतलब कि ये डेटा जो रूल सेट करना है किस रेंज पे आपको अप्लाई करना है। तो अभी क्या है यहाँ पर डेटा A2 पे ओनली अप्लाई होगा, हमें पूरे कॉलम पे अप्लाई करना है। इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इस पे सिलेक्ट करेंगे, देन A2 से लेकर जहाँ तक आपका रेंज है वहां तक, A2 से 8000 हम तक ले लिया, इसको ओके प्रेस कर देना। देन लिस्ट फ्रॉम रेंज, जो आपका लिस्ट है वो किस रेंज से आएगा, तो इस पे क्लिक करेंगे हम, हमारा रेंज J2 से लेकर यहाँ तक ले लेते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर हम कुछ और भी फील्ड यहाँ पर नीचे और भी नेम ऐड करें तो वो यहाँ पर कर ले। तो हमने क्या दे दिया, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज नोट वन थिंग कि यहाँ पे जब आपने ये लिस्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, गूगल शीट में ये एक बिल्ट इन फीचर है जो कि इस लिस्ट में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज भी होंगे ना, उसको भी वो एक ही बार में दिखाएगा। ठीक है, मतलब इट शो यू जस्ट वंस। ठीक है, ऑल्सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव दिस लिस्ट, जो भी वैलिडेशन आपका जो लिस्ट है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव दिस वैलिडेशन लिस्ट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या होता है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ आइटम्स, people know exactly, if they should be scrolling down or they should be scrolling up. ठीक है, we will also talk about how to write a unique and a sort function together from a list, putting it into a column, so that from that column the data validation can actually get the range. ठीक है ना, रेंज ऑफ बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। so far I hope this is clear. Like I said, please feel free to pause us if at any point of time you're finding it difficult. Again, I'm probably underestimating all of you here. I think this is a very simple topic, so probably that's why there's no question, but agar kuch bhi ho, so please feel free to ask. Thank you. सिलेक्ट डेटा रेंज J2 से लेकर J17, राइट, इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करना है, इस पर टिक रहना, चेक से लेकर टिक रहेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, शो वार्निंग रिजेक्ट इनपुट। अगर आप शो वार्निंग करेंगे तो क्या होगा, यूजर कोई और वहां पर फिल कर देता है तो उसको वार्निंग शो करेगा, बट सिस्टम आपका एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू, उसको एक एरर शो करेगा बट वो सिस्टम आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप रिजेक्ट इनपुट कर देंगे तो ये ड्रॉप डाउन के अलावा कोई और वैल्यू वहां पर एक्सेप्ट करेगा ये सिस्टम। तो हम रिजेक्ट इनपुट कर देते हैं, देन इसको सेव कर देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ABCD, जहाँ तक जो जो ड्रॉप डाउन वैल्यू, जो लिस्ट, इस लिस्ट में वैल्यूज हैं, सारी की सारी आपकी ड्रॉप डाउन में यहाँ पर आ गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू डालना चाहते हैं, इसके बाद हमने F डाल दिया, G डाल दिया, तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए FG भी आ गया यहाँ पर। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ तक कैसे ले ली, नीचे वाली वैल्यू कहाँ तक कैसे ले लिया, क्योंकि हमने जो ड्रॉप डाउन लगाया था वो हमने J2 से लेकर J17 तक लगाया था, इस रेंज से हमने ड्रॉप डाउन लगाया था, राइट। तो इस रेंज में जो जो वैल्यू आप डालेंगे, जो जो वैल्यू आप अपडेट करेंगे, तो वो ड्रॉप डाउन में अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट था हमारा लिस्ट फ्रॉम अ रेंज। अब सेकंड ऑप्शन पे आता, सेकंड क्राइटेरिया पे आता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, तो सेम हमें डेटा पे जाना है, देन डेटा वैलिडेशन पे जाना है आपको। सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो जैसे हम लिस्ट फ्रॉम अ रेंज डाला, सेम वो लिस्ट फ्रॉम अ रेंज क्या कर रहा था हमारा, एक आपका ड्रॉप डाउन बना रहा था। सेम हमारा क्या होगा, लिस्ट ऑफ आइटम भी एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेगा, बट इसके अंदर जो भी आप आइटम डालना चाहते हैं ड्रॉप डाउन में, वो आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेंगे। तो अगर हमें सेम ये नेम प्रिंट करने ABCD, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर A, B, C, D, E। So guys, use list of items when the number of items that you have are always going to be static, fixed, and they are less, मतलब 4-5 maximum, maybe also 7 to 10. ठीक है ना, if you have more items than that, obviously use list from range. ठीक है ना, छोटा अगर मतलब छोटा लिस्ट है आपके पास और जो लिस्ट बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना,
उसके लिए आप लिस्ट ऑफ आइटम्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एंड सेम हेयर, सेल रेंज जिस पर्टिकुलर रेंज का आपको इस रूल को अप्लाई करना है, सो वो रेंज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे जो जो आपने लिस्ट ऑफ आइटम वहां पे डाला आपने वैल्यू सारी से ड्रॉप डाउन में आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ आइटम। जो जो आप वैल्यू वहां पे कॉमा लगा के डालते हैं सारी सारी आपकी ड्रॉप डाउन में आती है। अब थर्ड वन पे आते हैं हम। थर्ड 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 क्राइटेरिया क्या है हमारा? अच्छा, बिफोर बिफोर वी गो टू द थर्ड क्राइटेरिया, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमने तो एज का जो कॉलम है, एज का कॉलम में हमने बस B2 में वैलिडेशन लगा के रखे हैं, ठीक है। बट वही सेम वैलिडेशन हमारे को B3, B4, B5 इसमें भी जरूरत पड़ेगा। सो वन ऑप्शन इज यू गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन एंड इंक्रीज इट from the dialog box. The other option is you can simply copy cell B2 and paste it down, या फिर उसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको अगर आप करेंगे तो भी वो वैलिडेशन उस पे, उस वाले सेल्स पे लागू हो जाते हैं। थर्ड थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा? लिस्ट फ्रॉम अरेंज के बाद क्या आता है आपका? नंबर। अब नंबर के अंदर आपके काफी सारे क्राइटेरिया होंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था एक बार कि अगर आपको यहाँ पर एज का क्राइटेरिया लगाना है, लाइक अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पे रूल सेट करना चाहते हैं कि यहाँ पे यूजर जो भी एज इंपुट करे उस यूजर का एज मिनिमम टू मिनिमम 18 होना चाहिए, और यहाँ पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्यों चाहिए, मतलब आपने यहाँ पे रूल सेट करते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर एंटर इनपुट होगा वो कम से कम 18 होगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 होगा, राइट। सो यहाँ पर हम ये रूल सेट करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे नंबर इनपुट हो वो 18 से ज्यादा और 50 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम डेटा पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, नंबर। नंबर में भी देखिए कई सारे आ रहे हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। सबसे पहले हम यूज करते हैं बिटवीन, कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन। बिटवीन हमें क्या कंडीशन देना है कि हमारा जो भी यहाँ पे नंबर हो 18 से 50 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रूल सेट कर दिया कि जो भी यहाँ पे नंबर हो वो 18 से 50 के बीच होना चाहिए। अब देखेंगे तो हमने इस पर्टिकुलर सेल पे लगाया है, जो अगर हम यहाँ पर 18 डालते हैं तो आपको सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पर 19 डालते हैं, सॉरी 17 डालते हैं, तब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रूल सेट कर दिया, जो भी यहाँ पे नंबर होना चाहिए वो आपका 18 से 50 के बीच होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे आपको मैसेज दिखा रहा है, द डेटा दैट यू एंटर्ड इन सेल D2 वायलेट्स द डेटा वैलिडेशन रूल। सो अगर आप चाहते हैं तो अपना खुद का मैसेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो मैसेज यूजर को शो करना चाहिए, आप अपना खुद का मैसेज डाल सकते हैं। तो वो कैसे डालेंगे हम, अभी हम देखते हैं इसको कैसे अपना मैसेज डालेंगे। यहाँ पर तो डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पर जाना है, जिस रेंज पर आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट, यहाँ पर सो इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। एंड यहाँ पर आप जो भी एंटर करेंगे, अभी क्या आ रहा है, एंटर नंबर बिटवीन 18 एंड 50। तो यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हम डाल देते हैं एज शुड बी वन सेकेंड, एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 50। तो आप जो भी यहाँ पे मैसेज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर देना है। सो अभी हम यहाँ पर कुछ डालेंगे जो कि रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा, ये मैसेज शो करेगा एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 50, राइट। तो ये हो गया आपका नंबर। नंबर में हमने कैसे अभी यूज किया, बिटवीन। अब हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, यहाँ नंबर के अंदर सेम नंबर पे जाना है। अभी आप देख रहे होंगे नॉट बिटवीन। अब हमने यहाँ पर अभी सबसे यहाँ पर क्या था, बिटवीन।
कि यहाँ पर मैं क्या रूल सेट कर दिया B2 सेल में कि जो नंबर होना चाहिए 18 से 50 के बीच होना चाहिए। अब हम सेट कर देते हैं कि जो नंबर होना चाहिए और 18 से 50 के बीच में नहीं होना चाहिए, जो हो गया आपका नॉट बिटवीन, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप नंबर डालें तो वो आपका 18 से 50 के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर आप 18 से 50 के बीच में जो भी वैल्यू डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देख रही है, यहाँ पे एरर शो कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसने मैसेज नहीं डाला, मैसेज हमारे पास नहीं आया, इसने सिस्टम ने सेट कर लिया, बट यहाँ पे रेड अलर्ट आ रहा है। रेड अलर्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो हमने डेटा वैलिडेशन यहाँ पे सेट किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑन ऑन इनवैलिड डेटा पर शो वार्निंग किया था। अगर यहाँ पे रिजेक्ट इनपुट कर देते हैं तो ये सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे आप डेटा एंटर करेंगे, आप देखिए मैं 19 डालूंगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर शो वार्निंग करेंगे तो यहाँ पर क्या रेड अलर्ट आ जाएगा, उसके पास एक मैसेज मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉट बिटवीन। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है नंबर के अंदर में। अब लेस देन में क्या है, आपको चाहते हैं कि लेस देन हम डाल देते हैं कि यहाँ पर लेस देन जो भी यहाँ पर नंबर इनपुट करें लेस देन आपको 50 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे आप 50 से कम होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगला देखते हैं हम लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू आप डाल देते हैं कि मतलब कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे वो या तो 50 से कम होनी चाहिए या 50 के बराबर होनी चाहिए, राइट। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटर नंबर लेस देन और इक्वल टू 50। तो यहाँ पर जो भी नंबर डालेंगे हम वो या तो 50 से कम होनी चाहिए या 50 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 51 डाल देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर हम यहाँ पर 50 डाल देते हैं सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, अगर हमने 49 डाल दिया तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन में अगला पार्ट नंबर के अंदर ही। अब सेम डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं हम। नंबर पे हमने क्या दिया, लेस देन और इक्वल टू। अब अगला देखते हैं क्या है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होगा आपका कि यहाँ पे आपने जो भी नंबर डालना, सो अभी क्या रूल सेट हो जाएगा, ये जो नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, 50 से बड़ा नंबर होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे लेस देन इक्वल टू था उसमें क्या था 50 से कम या 50 के बराबर, तो सेम इसमें क्या हो जाएगा 50 या 50 से ज्यादा, मतलब 50 और 50 अबव, राइट। तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू में ये रूल सेट कर सकते हैं आप। इक्वल टू में क्या है कि जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो इक्वल होना चाहिए। अभी हम 50 डाल देते हैं तो या तो ये अब सिस्टम क्या करेगा 50 या 50 ओनली 50 ही एक्सेप्ट करेगा, वो ना तो 51 एक्सेप्ट करेगा ना आपका आपका सिस्टम 49 एक्सेप्ट करेगा। देख रहे हैं आप। तो अभी हम यहाँ पे ओनली क्या डाल सकते हैं 50, हमारा इनपुट इक्वल टू क्या चाहिए 50 होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या है। टेक्स्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है कंटेंट्स। अब यहाँ पर कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अगर यहाँ पर डाल दिया ए तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ए होना चाहिए। कंटेंट्स का मतलब उस सेल में कहीं भी ए लिखा होना चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। हम यहाँ पर रूल सेट कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेम लिख रहे हैं, कहीं पर नेम डाल लेते हैं। जब मैं नेम डाले यहाँ पर तो हम कलर कर लेते हैं सेल को। अब हम यहाँ पे रूल सेट कर देते हैं कि जो भी यहाँ पर नेम डाले उसके नेम में ए होना ही चाहिए। हम टेक्स्ट में गए, अब हमने डाल दिया कंटेंट्स ए, प्रोजेक्ट इनपुट कर देते हैं हम। तो अभी हम डाल देते हैं जैसे कि डाल देते हैं। सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर हम यहाँ पर राम डाल देते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो और डाल देते हैं यहाँ पर ये नहीं होगा तो ये सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका स्मॉल या कैपिटल दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें ऐसा नहीं कि अगर आपने वहां पर इस कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए एक्सेप्ट करेगा, इसमें स्मॉल ए भी आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये हमारा टेक्स्ट में फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं।
डेटा वैलिडेशन में गए हम, टेक्स्ट में कंटेंट्स ए था, अब इसमें आता डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन में डालते हैं ए सेम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो वो वही टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा जिसमें ए नहीं होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे राम लिखते हैं अभी, तो राम आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम, ये एरर आ गया। तो यहाँ पर अब जो भी वैसे वही वैल्यू डाल पाएंगे जहाँ पर आपका ए नहीं होगा, हम कुछ भी डाल दें यहाँ पर, बट इस उस टेस्ट में, पर्टिकुलर टेस्ट में आपका ए नहीं होना चाहिए बस। सी ये हो गया आपका टेस्ट डज नॉट कंटेन्स। अब यहाँ पर आता है इक्वल। इक्वल मतलब अगर आपने यहाँ पर डाल दिया ए, तो यहाँ पर सिर्फ ए होना चाहिए, ए के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में। तो यहाँ पर अब सिर्फ ए एक्सेप्ट करेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आपका बी डालें, कुछ भी डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट डाल दिया जिसके अंदर ए भी आ रहा होगा, तो बट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इक्वल टू डाल दिया वहां पर कि सेम टू सेम उसके इक्वल होना चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका टेक्स्ट इक्वल्स टू। अब हम आते हैं इज वैलिड ईमेल। इज वैलिड ईमेल में क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे वो आपका वैलिड ईमेल होना चाहिए, मतलब ईमेल आईडी होना चाहिए, अदरवाइज आपको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ नेम डाल देते हैं, नेम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक यहाँ पर आप वैलिड ईमेल डालेंगे। अब हमने डाल दिया neeraj@coitbox.in, तो अभी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर रूल सेट कर दिया, जो भी आप इनपुट करें यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर टेक्स्ट होना चाहिए आपका, राइट। सो ये था आपका टेक्स्ट में इज वैलिड ईमेल। अब नेक्स्ट क्या हमारा इज वैलिड यूआरएल। तो मतलब यहाँ पर आप इसको रूल सेट करेंगे तो वहां पर एक यूआरएल होना चाहिए उस टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, डेट। अब देखिए, अब इज वैलिड डेट, इज वैलिड डेट, अब ये यूजफुल काफी होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर टीओजी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का आपका कॉलम है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पर कुछ और डाल दिया वैल्यू, या डेट का फॉर्मेट अलग कर दिया पर्सन ने। सो उस कंडीशन में आपका डेटा एक्यूरेसी नहीं होता है। डेटा वैलिडेशन हम बेसिकली इसलिए सेट करते हैं, रूल सेट करते हैं ताकि आपको डेटा एक्यूरेसी रहे। जहाँ पर नेम है तो वहाँ पे नेम ही डाले बंदा, जहाँ पर इज तो इजी डाल पाए। अदरवाइज जहाँ पर हमारा टेक्स्ट का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे नंबर नहीं डाल पाए, जहाँ नंबर की रिक्वायरमेंट वहाँ पर टेक्स्ट में डाल पाए। यहाँ पर आप रूल सेट कर देंगे तो यूजर कुछ और वैल्यू वहाँ पे इनपुट कर पाएगा जो कि इनवैलिड हो, वो यहाँ पे सिर्फ वैलिड वैल्यू डाल पाएगा। तो अब डेटा ऑफ ज्वाइनिंग हम रूल सेट करते हैं। डेटा ऑफ ज्वाइनिंग में हम क्या रूल सेट करेंगे, तो जो भी यहाँ पर इनपुट हो वो एक वैलिड डेट होना चाहिए। तो हम डेट में जाते हैं, हम रेंज पर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर C2 से लेकर C1000 तक। अब डेट में हमने क्या सेट किया, जो भी आपका इनपुट हो एक वैलिड डेट होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इस रेंज में कोई टेक्स्ट डालेंगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर डालेंगे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, टेक्स्ट डाला आपने तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका वैलिड डेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, 15/6/2021। सो अभी एक्सेप्ट कर लेगा। एंड सब एक और बेनिफिट होता है, अगर आपने डेटा वैलिडेशन में डेट का रूल सेट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इस सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा आपके पास। ये देख रहे होंगे आप, आपने इस पर डबल क्लिक किया इस सेल पे तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन होगी, जिससे कि आप यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप, तो हमने यहाँ से नॉर्मली आप इजीली यहाँ पे डेट। गाइस, ये जो टेक्निक है ना जो अभी नीरज दिखा रहा है, ये आप सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है ना। आप अगर जब भी कहीं पे भी आप आपका गूगल शीट सेटअप कर रहे हैं और आपके पास डेट का कॉलम है, तो डेट का कॉलम को 100% आपको सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है और इस डेट का वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे कर देना है। इससे होगा क्या कि people, even if they try to enter dates in a different format, they will immediately be informed, ठीक है ना।
many a times what I've seen is people are trying to write, 1st January, or first is a wrong example. Let's say they're trying to write, 12th January, okay, 2021. But what they write is, instead of writing, let's say 12, hyphen 01 hyphen 2021, what they write is they write the month first. Okay. The net effect उसमें क्या होता है, the system thinks that it is 1st of December. ठीक है, तो वो सारा चीज अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इट कैन बी रिजॉल्व. सेकेंड थिंग, इसका जो भी आप डेट आप लोग डालोगे, उस डेट का जो कॉलम रहता है ना, उस कॉलम को प्लीज एंश्योर दैट यू आर फॉर्मेटिंग समथिंग लाइक व्हाट इज शोन हियर इन सेल C2. इसमें क्या होता है कि इट इज क्लियरली मेंशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 14th of January. So let's say this date was something like 03/05/2021. ठीक है, it can mean 3rd of April, okay, or 3rd of May, or it can also mean 5th of March. ठीक है ना. So yes, on what basis it validates email ID? I think it should be validating based on the presence of @ and a dot. If I'm not mistaken, those are the two necessary this thing that it should be validating with. We will do a check after this. We'll try and we'll try and trick the cell to accept anything which is not an email ID. We'll see. But yes, it definitely does not validate an email based on the email ID being active or not. So if that is your question, then no, it is not that intelligent yet. ठीक है, सेट कर सकते हैं. यूजर को टाइप करने की जरूरत भी नहीं है. ये देखिए, ये आपका कैलेंडर ओपन हो गया. जिस मंथ का भी आपको डेट सेट करना है, आप डेट सेट कर सकते हैं यहाँ पर. एंड अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना है, तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली आपको इस रेन को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट का जो मेन्यू बार आ रहा है, यहाँ फॉर्मेट करना है, यहाँ पे नंबर पे जाना है. नंबर के बाद आपको जाना है मोर फॉर्मेट्स, मोर डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स. तो यहाँ पे आपको जितने फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे वो फॉर्मेट आपके पास शो करेंगे. सो हम सेट कर लेते हैं ये वाला फॉर्मेट. अप्लाई कर दिया हमने, तो ये वाला फॉर्मेट आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया. ठीक है, ये आपका डेटा वैलिडेशन करता है. इस वैलिड डेट रूल हमने सेट किया था यहाँ पर. अब अगले रूल पे आते हैं हम. अगला रूल हमारा क्या है? इस वैलिड डेट के बाद क्या आता है? इक्वल टू में भी सेम क्या है? अब यहाँ पे रूल सेट करेंगे आप कि जो भी आपकी डेट होनी चाहिए इसके इक्वल, इस पर्टिकुलर डेट के इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम डेट लगाते हैं कि जो भी हमारी डेट हो, हम डाल देते हैं यहाँ पर कि जो हमारी डेट हो, लेट्स सपोज आज की डेट डाल देते हैं 9 जनवरी 2021. तो अभी ये क्या करेगा? ये आपका वैल्यू यहाँ पे एरर शो कर दिया, क्योंकि ये डेट आपकी 9 जनवरी 2021 के इक्वल नहीं है. अब यहाँ पर जो भी आप डेट डाल पाएंगे वो आपके 9 जनवरी के इक्वल होना चाहिए. अगर आपने यहाँ पे 12 डाला तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. अभी यहाँ पर 9 डालेंगे तभी यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा. एक मिनट, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं दोबारा. 9 जनवरी 2021 को टाइप करना पड़ेगा. अभी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसको टाइप करना पड़ेगा आपको. अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं डेटा वैलिडेशन में. इक्वल टू हो गया हमारा. अब आते हैं बिफोर. बिफोर में क्या है? सेम आपको डेट डालेंगे ऐसी जो
अब उस डेट के वो जो भी डेट डालेंगे उसके इससे पहले की होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेट बिफोर। डेट ऑन और बिफोर का मतलब क्या हो गया, जो भी यहाँ पर आप डेट डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डाला 9 जनवरी, सो 9 जनवरी के वो होते हैं, तो 9 जनवरी होनी चाहिए या 9 जनवरी से पहले का होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ऑन और बिफोर। आफ्टर क्या हो गया, अगर यहाँ पे डेट डालते हैं आज की 9 जनवरी, तो 9 जो भी डेट यहाँ पे डालेंगे हम वो 9 जनवरी के बाद की होनी चाहिए। ऑन और आफ्टर क्या हो गया आपका, या तो 9 जनवरी 9 जनवरी होनी चाहिए या तो 9 जनवरी के बाद की डेट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हो गया बिटवीन। बिटवीन में क्या हो गया आपका, या तो इस डेट के पर्टिकुलर होनी चाहिए या उस तो दो डेट्स के बीच की डेट होनी चाहिए। मतलब आपने डाल दिया है कि यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के बीच की डेट होनी चाहिए आपकी, राइट। तो ये हो गया आपका बिटवीन। नॉट बिटवीन, सेम जैसे नंबर में था कि हमने सेट कर दिया कि जो भी आपकी वैल्यू हो इसके बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब आपने डेट कर दिया कि यहाँ पर जनवरी से फरवरी के बीच की डेट नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो ये आगे आपका नॉट बिटवीन हो जाता है। तो ये हो गए आपके डेट के सारे फंक्शन, डेट के सारे रूल्स। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। अच्छा, before we move on to the next part, uh, some of you might find these conditions very, difficult to implement, or you might have, like, options like, I want the, the first Saturdays of every month to not be, selected, stuff like that. So simplest solution that I found to that is, आप ना एक सिंपल एक कॉलम में आपका जो भी वैलिड डेट्स हैं, ठीक है, वो वैलिड डेट्स लिख के रख लें एक कॉलम में, ठीक है। और उस कॉलम से आप नॉर्मल लिस्ट फ्रॉम रेंज से उसको आप लिंक करा दें। उससे क्या होगा कि वॉट एवर डेट्स यू हैव पुट इन दैट सेट ऑफ सेल्स, वही सेल से वो बंदा पिक कर पाएगा, बंदा बंदी सॉरी, पिक कर पाएगा, पाएगी। ओके, सो you can also do a few things with this kind of technique. You can write something like, let's say, a today formula. Okay, so you can write equals to today, open bracket, close bracket, and enter. अगर ये आप कोई भी सेल पे आप करके देखो अभी, what happens is you will get the date that is today's date, ठीक है। if you open the sheet the next day, it will automatically update. So then what you can do is you can say today in one cell, and in the cell below you can say the cell above +1 +1 +1, ऐसे कर करके you can build a list. So let's say आपकी organization में you want people to be able to fill yesterday's date, today's date, and आज से लेके 7 days ahead, ठीक है। सो टुडे +1 करके आप 7 बार करोगे, और टुडे के ऊपर यू विल डू टुडे -1. So like that, what will happen is, based on the today function, you will always have today's date. Now moment today's date update, you will get the next 7 days niche and 1 day before above in that particular range of cells, and then you use that range of cells in your list of ranges, ठीक है। so that way it will always be an accurate way to control people, what range of dates they can input in the sheet, ठीक है। आगे चलते हैं। कस्टम फार्मूला, सबसे कस्टम फार्मूला से पहले हम सीखते हैं टिक बॉक्स। टिक बॉक्स क्या होता है, आपको पर्टिकुलर चेक बॉक्स क्रिएट कर देगा वहां पर, उस पर्टिकुलर सेल में आपके आपके पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा, चेक बॉक्स शो करेगा वहां पर। तो हम यहाँ पे टिक बॉक्स लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, चेक बॉक्स आ गया आपका। अगर यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट करने से एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर या तो आप इसको टिक कर पाएंगे या टिक कर पाएंगे, यहाँ पर आप कुछ ही वैल्यू डाल पाएंगे, देख रहे होंगे आप। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर हमने रूल सेट कर दिया, यहाँ पे टिक बॉक्स ही रहेगा, चेक बॉक्स। एंड यहाँ पर हमारा एक पार्ट रह गया, क्या वो क्या है आपका कस्टम फार्मूला। तो ये आपका काफी यूजफुल होता है, काफी ये सबसे एडवांस होता है सभी रूल्स को हटाने के लेने के बाद। ये रूल जो आपका होता है काफी थोड़ा सा एडवांस होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम रूल सेट करते हैं फॉर्मूले को। तो अभी आप So those of you
who felt you knew everything that there is about data validation. Here is an open challenge. ठीक है ना? If you are still here in the chat, I want you guys to answer in the chat. ठीक है? How many of you know how can we put a data validation in a way that will ensure that a correct phone number has been put in? फोन नंबर का वैलिडिटी वो चेक करेगा अगर whatever is the in this thing. How many of you know this? Please type me in the chat. Okay, that is one way. There's another element that you need to check, Satish. That's a good one, definitely. That's the first. Anybody else? So we'll also check if it's a valid number or not. So with that, what will happen is some people try and put that, +91 and all of that. That can also be taken care of. So Abhishek says, Abhishek, could you explain that? I didn't understand. चलिए concept is the number of employees. नहीं we are talking about phone numbers. एक सेल में आप, so you know what, Abhishek, what I'll do is after we are done with this topic, I'll ask you to share your sheet, maybe if it's possible. आप ऐसे करके रख लो, or create a separate sheet where you are not sharing any confidential information with me. I will have a look at your sheet and I can maybe suggest. Okay. Okay. Let's look at this. So here basically we are going to use a combination of AND function, number as well as len. ठीक है, let's see how it नहीं, looks. ये सब रूल्स लगा दिया हमने। अभी क्या क्या रूल्स सीख लिया। लिस्ट फ्रॉम रेंज हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया एक रेंज से। लिस्ट ऑफ आइटम हमने यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम डाल दी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया ए बी सी का। नंबर में आपने सीख लिया बिटवीन इस रेंज से इस रेंज की बिटवीन होनी चाहिए। सेम हमने डेट भी सीख लिया या टेक्स्ट भी सीख लिया। कस्टम फार्मूला में बेसिकली होता क्या है, अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके इसके अंदर अवेलेबल नहीं, जो कि आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इन सभी रूल्स में नहीं मिल पाएंगे। लिस्ट ऑफ आइटम, नंबर, टेक्स्ट। और लेट्स सपोज नंबर ले लेते हैं हम। अभी हमने नंबर कर लिया, अब हम नंबर में चाहते हैं, अभी हमने नंबर क्या किया था कि बिटवीन ले लिया, नॉट बिटवीन ले लिया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अगर आप चाहते हैं कि जो भी यूजर इसमें वैल्यू डाले, इस यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेल में वैल्यू डाले, वो एक इवन नंबर होना चाहिए। मतलब अगर ऑड नंबर हो तो वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, और अगर इवन नंबर हो तो वो एक्सेप्ट कर ले। हम चाहते हैं कि H3 में जो भी वैल्यू डालें वो क्या होना चाहिए, आपका एक इवन नंबर होना चाहिए, आपका ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। सो ये आपको रूल सेट करना। तो ये रूल्स आप यहाँ पर सेट नहीं कर पाएंगे नंबर में जाके। अगर आप नंबर में जाएंगे तो नंबर में ऐसा कोई रूल नहीं मिलेगा जहाँ पर आप इज ऑड इज इवन और कुछ यहाँ पर देख पाए कि ये नंबर जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई रूल सेट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे हम? सो इस कंडीशन में क्या हम यूज करते हैं, कस्टम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कस्टम फॉर्मूला जो वही फॉर्मूला होना चाहिए। कस्टम फॉर्मूला आप इसके अंदर वही फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहाँ पर डेटा वैल्यूज में जाते हैं हम, कस्टम फॉर्मूला सेट किया एंड यहाँ पर हम क्या डालते हैं, फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप वही फॉर्मूला डाल पाएंगे जिसका रिजल्ट आपका ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। अब ये जो भी फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है, इस पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। अब हम अगर आपको चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है, सो इवन चेक करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इज इवन। इज इवन लिया आपने एंड एसटीएस सेलेक्ट कर लिया। ये अभी क्या शो कर रहा है, ट्रू। यहाँ पर बेसिकली जीरो ले रहा है, तो जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है। बेसिकली अगर यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो ये फॉल्स आ जाएगा।
अगर यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो ये ट्रू आ जाएगा, मतलब 2 क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इवन S3। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, ट्रू या फॉल्स में आ रहा है। तो यहाँ पर आप कस्टम फॉर्मूला वही फॉर्मूला डाल पाएंगे जिसका रिजल्ट आपके ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। अगर ट्रू होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर फॉल्स होगा तो सिस्टम आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेम डेटा वैलिडेशन पर जाना है हमें। अब यहाँ पर हम सेट करें कस्टम फॉर्मूला एंड यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम पेस्ट कर देते हैं, इज इवन S3। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू डाल पाएंगे वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम आपका इवन नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, कस्टम फॉर्मूला। सेम अगर आपको यहाँ पे सेट करना है इज ऑड, कि यहाँ पे जो भी नंबर हो वो आपका ऑड नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इज ऑड। इज ऑड हमने लगाया यहाँ पर, इसको हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं एंड हम डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पर कस्टम फॉर्मूला हम क्या डालेंगे, कस्टम फॉर्मूला में अब हम डालेंगे इज ऑड, इज ऑड डाला हमने, इज ऑड S3। इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू हम डाल पाएंगे वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। इवन नंबर हम डालते हैं अगर 2 डाल देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको कस्टम फॉर्मूला। इसमें हम काफी तरीके से आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब आप अगर आपको सेट करना है जैसे मोबाइल नंबर के लिए, तो मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन को दे सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन लाइक अगर आप चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर इनपुट हो, या तो वो आपका एक फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, एक तो नंबर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगा आपका, कि उसकी लेंथ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर होता है 10 नंबर का, 10 डिजिट का होता है। तो हम क्या, 2 कंडीशन हो जाएंगी इसके अंदर में, कि जो यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, और उस नंबर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कंडीशन मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देते हैं, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो नंबर अगर आपको चेक करना है फॉर्मूले के थ्रू कि जो भी वैल्यू है वो नंबर है या नहीं, सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इज नंबर। इस नंबर में जो भी वैल्यू डालेंगे तो बता देगा कि वो नंबर है या नहीं। अगर ट्रू आ रहा है तो नंबर है, अगर फॉल्स आएगा तो वो नंबर नहीं है। अगर कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल दिया तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये नंबर नहीं है। तो सबसे पहला आपका कंडीशन क्या हो गया, कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए नंबर होनी चाहिए, राइट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, कि उस नंबर की लेंथ, मतलब उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी हमें। तो लेंथ के लिए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है गूगल शीट एक्सेल में, लेंथ, LEN। LEN आपने लगाया यहाँ पर एंड आपने रेफरेंस दे दिया नंबर का, तो यहाँ पर क्या लेंथ आ गया इसका 10। सो इस कंडीशन में आपको 2 कंडीशन हो रही है, कि एक तो आपका ये जो वैल्यू है वो नंबर होना चाहिए एंड उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को आप एक साथ कैसे लाएंगे, तो एक साथ लाने के लिए क्या यूज करेंगे आप, एंड फंक्शन। एंड में क्या करेंगे आप, AND लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इज नंबर, ये इसका ये नंबर होना चाहिए, ये जो भी वैल्यू है नंबर होना चाहिए। एंड सेकंड क्या हम इसमें लगाएंगे, कि इसका जो लेंथ है, इस नंबर का लेंथ क्या होना चाहिए, इस नंबर लेंथ क्या होना चाहिए आपका, 10 होना चाहिए, इज इक्वल टू 10 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये ट्रू दिखाता है। तो ये ट्रू। अब देखिए अगर हम इसमें से कोई भी एंड, So before we proceed any further, just मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन एंड और। ठीक है, लॉट ऑफ यू
माइट गेट कंफ्यूज कि कहाँ पे एंड यूज करना है, कहाँ पे और यूज करना है, और फंक्शन, ठीक है ना। एंड आप वहीं पे यूज करोगे जहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट में आपको सारा चीज ट्रू चाहिए, ठीक है ना। मतलब इट्स लाइक सेइंग 1 into 1, ओके, it will give you 1, but if it is 0 into 1, it will give you 0. So here ones and zeros are representing true and false, ठीक है। when we are talking about an or function, it is like a plus, ठीक है। so it can be 0 plus 1 or 1 plus 0, it will both give you the answer 1, ठीक है। so with an or function, any of the criterias, if it is true, it is going to return you true. With an AND function, all the criterias need to be true for it to return true, ठीक है। so basic difference AND और OR में इतना ही है। now you can definitely start exploring. एंड और एक और फंक्शन होता है, और एंड में क्या होता है कि जब तक आपके जितनी भी आपने कंडीशन डाली है एंड के अंदर वो सारी सारी ट्रू नहीं, तब तक वो इसका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आपने फर्स्ट कंडीशन होगी आप लेंथ आपका 10 होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या होगा इस नंबर होना चाहिए। तो जब तक दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होंगी तब तक एंड का रिजल्ट आपका ट्रू नहीं होगा। और क्या होता है, और फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी भी कंडीशन में आपको ट्रू हो गया तो वो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे और लगा देते हैं, और डाल देते हैं, तो और कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर और फंक्शन के केस में हमने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया बट उसका लेंथ प्लस होना चाहिए। हम डाल देते हैं यहाँ पर ABCD कुछ भी डाल देते हैं। टेक्स्ट कितना हो गया अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी एक कम रह गया आई थिंक। अब देखिए, तो यहाँ पर दो रूल थे हमारे, दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन था हमारा, एक कंडीशन था हमारा एक नंबर होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या था इसकी लेंथ 10 होनी चाहिए। तो अभी इन दो कंडीशन में से हमारा एक कंडीशन क्या होगा, ट्रू। कौन सा कंडीशन ट्रू हो गया, आपका लेंथ इज इक्वल टू 10, राइट। एंड सेकंड कंडीशन क्या था हमारा, इस नंबर, मतलब ये आपका जो भी वैल्यू है इसका नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। बट एक कंडीशन आपका ट्रू हो गया, इसलिए ये इसका रिजल्ट ट्रू आ गया। तो हमें क्या इस कंडीशन हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे एंड फंक्शन यूज करना है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन ट्रू करानी है। जब तक दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो तब तक यहाँ पर ये वैल्यू एक्सेप्ट ना करें। सो अभी हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं एंड हम जाते हैं F2 पे। देन डेटा पे जाना है आपको, सेम डेटा वैलिडेशन पे जाना है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करें कस्टम फॉर्मूला इज, एंड यहाँ पर आपको अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देना है एंड इसको रिजेक्ट इनपुट कर दीजिए। यहाँ पे हम डाल देते हैं वैलिडेशन में, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका इनपुट होना चाहिए, सबसे पहले तो नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद क्या कंडीशन है वहाँ पर, वो नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे नंबर डाल दिया तो क्या आपका 4 डिजिट का तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी यहाँ पे नंबर डालेंगे आप वो आपका 10 डिजिट का होना चाहिए। अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, आई थिंक कुछ कम रह गया। यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो अभी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो कहना मतलब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दिया कि जो भी यहाँ पर आपका इनपुट हो, एक तो वो नंबर होना चाहिए एंड सेकंड वो आपका 10 डिजिट का होना चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशन के केस में आप क्या यूज करेंगे, एंड फंक्शन। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस को ट्रू ट्रू कराना है एंड अगर उसमें से कोई भी कंडीशन आप ट्रू कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन आप ऑल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टम फॉर्मूला। तो हमने आई थिंक सारे कवर कर लिए हैं, डेटा वैलिडेशन में हमारा सारा पार्ट हो गया है।
तो कस्टम फॉर्मूला बेसिकली आप अपने यूज के हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हैं, कई तरीके के फॉर्मूला हो सकते हैं, बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फॉर्मूला बनाए उसका रिजल्ट जो होना चाहिए या तो वो ट्रू में है या फॉल्स में, मतलब जो भी रिजल्ट उसका आउटपुट है फॉर्मूले का वो ट्रू फॉल्स में आना चाहिए। थैंक यू, ये था हमारा आज का डेटा वैलिडेशन। ऑलराइट, तो गाइस आप में से अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस डेटा वैलिडेशन that you feel has not been covered or you have any doubts, ठीक है ना, कि आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो अपना शीट में, प्लीज फील फ्री टू शेयर। ऑल्सो अभिषेक झा, इफ यू आर अराउंड, आप अगर आपका शीट शेयर करना चाहोगे, मैं एक बार स्टॉप शेयर कर लेता हूँ, आप अपना शीट शेयर कर लीजिए। I can have a look at your sheet maybe. Just give me a second. Yeah. किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? अच्छा, Abhishek, are you around? If Abhishek, if you are not around, then what I'll do is I'll quickly cover 2 more topics and circle back to you. ठीक है ना? तो एक सेकेंड देना मेरे को। तो अभी एक और टॉपिक हम ले लेते हैं, फ्रीज रोज एंड सेल्स। ठीक है ना? यहाँ पे ये हाउ टू बेसिकली फ्रीज, यू नो, okay, first let me not jump the gun and assume कि all of you know what freezing a cell is. ठीक है ना? Let me just take a blank sheet. ठीक है, अब देखिए फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब व्हेन यू आर स्क्रोलिंग डाउन, ऐसे आपके पास मैंने एक डेटा का शीट ले लिया, जब मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ नीचे, आप देखिए ये ऊपर का जो टॉप रो है, ये टॉप रो ऊपर नहीं जा रहा है, दैट इज बिकॉज आई हैव फ्रोजन दैट टॉप रो। ठीक है, इसको अगर मैं चाहता हूं तो इसको मैं अनफ्रीज भी कर सकता हूं, इसको अगर मैं अनफ्रीज कर देता हूं तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा कॉलम क्या है व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, और इसमें क्या होता है, मिस्टेक्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको करने का 2-3 तरीका है। फर्स्ट वन इज, आपको जहां तक फ्रीज करना है, यू कैन just put your mouse on this line which is separating the column names and your actual headers. इसके ऊपर जैसे आप माउस कर्सर आप डालेंगे, I hope you can see that the mouse cursor is changing to a hand. You can basically grab that and pull it down like this. तो ऐसे करने से अभी ये रो फ्रीज हो जाता है। This is one way of doing it. Another way of doing it is, so if I let's say click here, okay, this will be easy. The reason why I'm clicking here is also going to be interesting. So if I click here and then if I go to view and then I go to freeze, अब देखिए यहाँ पे number of rows to freeze, it's saying 1 row और it's saying up to row 2. तो इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो it will be frozen. However, let's see if I had clicked here. अब देखिए if I go to view and freeze, ये मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है up to row 7. ठीक है, सो वेयर यू हैव क्लिक्ड ऑल्सो डिटरमाइंस कि आपके यहाँ पे जो भी फॉर्मूला, जो भी ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस भी आपके हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है, सिमिलरली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू स्ट्रगलिंग जब आप लोग कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे n के बाद आप लोगों को 3 कॉलम ऐड करना है, सो व्हाट आई हैव सीन पीपल डू इज राइट क्लिक हियर and insert 1 column to the right, then again they will right click, insert 1 column to the right, and then again they'll right click, insert 1 column to the right. Boring, right? So what you can do is, आप simply आप number of columns select कर लीजिए, मैंने यहाँ पे 5 column select कर लिए। अब देखिए if I right click on this, these options have changed. I am getting this option insert 5 columns to the right. ठीक है, तो based on your selection also the options that you get are slightly dynamic. Now I can simply click on this and I will have
5 columns here like this. Okay, so just explore these small little things. If you are not aware, they really help. Also, whenever you see somebody working, if you are not doing anything and if you see somebody else working on a Google sheet, just observe, क्योंकि इसमें छोटा छोटा बहुत सारा चीज होता है. Every time I have seen somebody work on a spreadsheet, trust me, I have learned something new, no matter how much of a fresher that person is. And if that person is experienced, so obviously I have a lot to learn. ठीक है ना? So these are two small little things that I wanted to tell you guys. अच्छा, similarly जैसे आप ऐसे freeze कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको भी आप ऐसे freeze कर सकते हैं. This is also a very interesting one. So let's say मैंने यहाँ पे यहाँ तक freeze कर दिया और आपके पास अगर end तक ऐसे data है, ठीक है, तो obviously you would want to see कि यहाँ पे against which product we are talking about in that particular row. जब आपका यहाँ पे डेटा आगे चला जाता है, ठीक है, if you do not have it like this, what will happen is the first 2 columns will get hidden. Now you do not know what's happening on the left hand side, which order number or which product are we talking about here in this cell. So freezing is a very important technique as well as a necessity. ठीक है ना? Whenever you create any Google sheet, Excel sheet, whatever, spreadsheets, anything, if you're using a ODS or whatever it is, just ensure you freeze the top columns, and wherever necessary, freeze the columns on the left as well. But please do not over freeze. Okay, I have seen a lot of people freezing like all the way up to here like this. Okay, and they have just this little space to basically move around. Okay, that's an overkill. That's literally an overkill, and on top of that, if you want a little more of that overkill, you can also drag it down like this. So basically you only have these 4 cells to play around with. Okay, so please use this option judiciously. अच्छा, एक और चीज अभी है. Now let's say you want to not show the status, or let's say यहाँ पे you do not want to show the amount, ठीक है ना, to a particular person. So what you can simply do is you can right click on this and you can simply hide the column. Similarly, you can select multiple columns also and you will get, again, ये option dynamic हो जाता है. Initially I only have the option to hide column H. अभी देखिए ये बढ़ गया है यहाँ पे. I can click both. All of those 3 columns have now been hidden. ठीक है? To unhide it, it's simple. Do not panic. Just put your mouse cursor here and just click on this. It will unhide. If you cannot get to this, आप इसको select भी कर सकते हैं और इसको right click करके you will have the unhide option then. Until and unless there is nothing to unhide, you will not have the unhide option. ठीक है ना? Unhide का देखिए यहाँ पे option नहीं आ रहा है. इसको मैं अभी hide कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं select करके उसके बाद मेरे पास ये unhide का option आएगा. ठीक है? So that was basically 2 more things: freeze rows and cells and hide rows and columns. ठीक है? ये सेम चीज आपको यहाँ पे formula.coitbox.com में documented मिल जाएंगे. Those of you who are part of our Tech Mastery Advance, you all will have access to this particular page. The reason why we are doing these workshops is to ensure that आपके organization में जब भी कोई नया बंदी ज्वाइन करे, ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग के लिए इस साइट पे डायरेक्ट कर दीजिए. तो यहाँ पे आपको उनको यही बोलना है कि यहाँ पे जितने भी सारे वीडियोस हैं, ठीक है, ये सारे देखने हैं उनको. ठीक है, एक बार ये सारे वो एक बार देख लेंगे ना, आप 1-2 क्वेश्चन उनको कीजिए. अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे, let the person go back and do this again. First few days of induction बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए. If the person is a complete fresher, ठीक है, just push them to go through all this. अगर इतना वो कर ले, ठीक है ना, they will be able to do 80% of their roles. We can assure you कि यहाँ पे हमने वही सारा चीज डाल के रखे हैं
जो important है. Obviously, this is not the entirety of what is available in Excel or Google Sheet. These are only the practical ones. There are maybe like another 1,000 more formulas which are not covered here, like math-based formula, statistics-based formula, engineering calculation-based formulas. Those are not, here, because those are not practical, in the scenario that we are, discussing. So coming back to this, I hope there's no question so far on this. We will go to the last bit, which is conditional formatting. And Abhishek, if you're around, we could take your question on data validation. आप हो अभी अभिषेक यहाँ पे? अच्छा चलिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं. ये काफी इंटरेस्टिंग है, और टू क्विकली विजुअलाइज एरर्स, ठीक है ना, ये बहुत हेल्प करता है. बट गाइज प्लीज नोट एंड रिमेंबर, आप अगर आपके शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका शीट को डेफिनेटली स्लो कर देता है 100%, ठीक है ना. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. Conditional formatting is actually quite heavy on a Google Sheet, because it runs through that entire, this thing, and it keeps checking at every, instance. Every time it recalculates, it checks against those, criteria. Putting any kind of colors, any kind of formatting does, slow your, Google Sheets down. Also, I have seen a lot of people, like, let's say you want to highlight something, highlight a row or something like that, right? फर्स्टली तो आपके पास यहाँ पे काफी सारा एडिशनल कॉलम्स रहते हैं, यहाँ से लेके लेट्स से यू हैव मोर कॉलम्स लाइक दिस, एंड देन व्हाट आई हैव नोटिस्ड सम पीपल डू इज, लेट्स से दे विल सिलेक्ट दिस एंटायर थिंग एंड दे विल हाईलाइट लाइक दिस. ठीक है, सिलेक्ट दिस एंड highlight like this. Also similarly what they do is they select the entire thing and they will highlight a column like this. इससे honestly होता क्या है ना, Google Sheet assumes कि there is data not just up until अब यहाँ पे तो मेरे पास extra rows है नहीं, so if I had to give you a pertinent example, so what Google Sheet will assume is there is data all the way till the last row, because you have put in some formatting here. ठीक है. Similarly, when you have formatting running like this to the right hand side, Google Sheet or Excel also for that matter does not just look at the active range of cells where there is data. It looks at, so this also basically becomes active. ठीक है. It's like saying go to my house and get me my car keys. ठीक है. Instead of telling somebody my car keys are in my drawer. I hope you're understanding the logic. ठीक है ना. The canvas where you're expecting Google Sheet or Excel, to work, keep it as minimal and directed as possible. Okay. Now let's look at conditional formatting. For those of you who have not explored conditional formatting, I think this is self-explanatory. मेरा नाम योगेश है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मूले के साथ किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. तो वो बताने से पहले जनरली सबसे पहले मैं एक कंडीशन जो है वो आपको बता देता हूँ कि वो कंडीशन किस तरीके से होती हैं. तो सपोज इक्वल टू, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1000 है या नहीं, तो उसके लिए मुझे ट्रू फॉल्स को रिटर्न करेगा. तो मैंने सिंपल देखा और मैं ये ऑटो फिल कर देता हूँ. ये देखिए मुझे ना इसने वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न करके दी. तो जिस तरीके से ये इसने कंडीशन ट्रू की है या ये कंडीशन फॉल्स की है, सेम इसी तरीके से फॉर्मेटिंग मैंने लगाई हुई थी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो ये कलर चेंज हो जाए. इसी तरीके से मैं इन आइटम्स के कलर चेंज करूंगा किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, सेम उसके साथ फॉर्मेटिंग लगाएंगे. तो वो किस तरीके से करना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये सबसे पहले मुझसे पूछता है कि फॉर्मेटिंग जो है वो मुझे कौन से कॉलम में अप्लाई करनी है. तो मैं कर देता हूँ A4 से लेके A के बीच में, यानी कि इसके बीच में मुझे कंडीशन जो है वो लगानी है. उसके बाद मैं यहाँ करूँगा कस्टम फॉर्मूला. मुझे फॉर्मूला कस्टम कराना है. क्या फॉर्मूला लगाना है मुझे, इक्वल टू, मैं देखना चाहता हूँ कि ये सी कॉलम जो है यानी C2 से लेके C ओवरऑल ग्रेटर देन अगर 1000 मिला मुझे, इसमें कोई भी सेल जो 1000 से ऊपर होगी उसके बेस पे कलर चेंज होना चाहिए ए कॉलम के अंदर. अप्लाई टू रेंज, ये फॉर्मेटिंग ए में अप्लाई होगी.
तो अगर मैं इसमें कलर कर दूं इस तरीके से, ये मैं इसको डन कर दूंगा सिंपल। अब आप देखें यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग की है, तो यहाँ पे लगाया है मैंने कि इस रेंज में सी कॉलम के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 1000 से ऊपर है, उसका कलर यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे जैसे ये 200 है, तो मैं अगर इसकी अमाउंट बढ़ा दूं, 2000 कर दूं, 1000 से ऊपर हो गया तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, हो गया। और ये इतना है, अगर मैं इसको 90 कर दूं, ये 1000 से कम है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक कंडीशन बताई, इसी तरीके से मैंने एग्जांपल 2 भी बनाया हुआ है, मैं उसको भी ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं देखना चाहता हूँ ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में कंपैरिजन देखूंगा। तो सपोज मैं ये देख लेता हूँ कि ये वैल्यू जो है क्या बड़ी है इससे, है या नहीं, तो वो मैंने देख लिया नहीं, यानी कि एक्चुअल जो है वो बड़ा है प्रोजेक्ट से या नहीं, वो मैंने देख लिया। ये वैल्यू फॉल्स हो गई, ये वैल्यू ट्रू हो गई, यानी कि इन जगहों पे ये जो वैल्यूज हैं एक्चुअल वाली जो वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यू जहाँ पे ट्रू आ रहा है डी कॉलम के अंदर, वो जो है इससे बड़ी है। अब इसके बेस पे मुझे ये रेंट पे जो ये वैल्यूज लिखी हुई है इनका मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट पे गया, सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं यहाँ पे मुझसे पूछेगा अप्लाई किस में करना है। मैंने कहा A2 से लेके मुझे A में अप्लाई करना है। मैं कस्टम फॉर्मूला करूँगा सिंपल। मैंने यहाँ पे डाली वैल्यू कि मुझे क्या चाहिए, ये जो C2 से लेके C, अगर वैल्यू बड़ी है किससे, B2 से लेके B पे, उनका जो है वो कलर जो है चेंज कर दे। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये कलर मुझे चेंज करना है, मैंने इसको डन कर दिया, तो ये फॉर्मेटिंग लग गई मेरी। अब मैं यहाँ पे, अब एक्चुअल में कोई भी वैल्यू अगर मेरी जो है वो बड़ी हो जाएगी प्रोजेक्ट से ज़्यादा, तो सेम उसके सामने वाला जो रेंट में जो वैल्यूज लिखी हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं बड़ा कर दूँ, तो मैं इसमें काम करता हूँ, वैल्यू को बड़ा कर, ये वैल्यू मैंने बिग कर दी, प्रोजेक्ट से ज़्यादा है वैल्यू इस एक्चुअल की, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ कुछ फॉर्मूलोज का भी यूज कर सकता हूँ। Okay, so that was that. Conditional formatting can also be pretty interesting in a lot of places. ठीक है, like I said, यहाँ पे देखिए, if it is orders 1, ठीक है, or if it is dead, you see there is conditional formatting here, right? अभी यहाँ पे इसको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है ना, how this thing has happened. So I will click on this. I will go to, यहाँ पे कहाँ पे है अभी, एक सेकेंड, फॉर्मेट, यस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे देखिए देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। फर्स्ट इज टेक्स्ट कंटेंट्स डेड, तो यहाँ पे दिस एंटायर एरिया हैज सिलेक्टेड, यहाँ पे फॉर्मेट रूल्स में जाके टेक्स्ट कंटेंट्स और यहाँ पे डेड डाल दिए। इसके बाद व्हाट वी डिड वाज वी सिंपली पिक्ड दिस टेक्स्ट कलर। इफ यू वांट दिस टू आल्सो बी, let's say, bold, right, you can click on this bold here and you can click on done. So all this dead wala jo ye hai, these have all gotten bold again, theek hai. You can similarly also change, let's say this is lost, theek hai, all the lost, let's say you want it to be highlighted separately, right? You can also put a background color like this. Let's say I want to make this background color red and I want to make the text color white, ठीक है, and I also make this bold like this. So this actually stands out, ठीक है ना. You can use a solid red background color, change the color of the font to white and make it bold. So this really stands out if you really need it to stand out, right? So click on done. Now let's say if there is any lost, there isn't any lost this thing here, so I'm going to just type lost here, ठीक है. जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे lost टाइप करेगा, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है. See, this has gotten automatically formatted. And the last one, again similar, this thing applies to range. यहाँ पे text contains 1 and this. यहाँ पे I would like to show you guys one more thing that conditional formatting can really do for you guys.
is use of this color scales. ठीक है ना? This color scales can actually highlight in Excel. Actually, this is a lot better. You know, you have a lot, more options within Excel, within color bars and everything else. If you are still an Excel user, you can try and explore that. But यहाँ पे आप देखिए, you can basically define the minimum values, midpoints, maximum values, किस किस का क्या क्या color होना चाहिए. ठीक है? Let me just click on done and let me just show you what happens here. 1 second. Just give me 1 moment. So यहाँ से लेके, let me select till here, add rules. I'm going to say let me do a percentile. Okay, so anything that is on the higher end, let's say above 90 percentile. Midpoint I will not put anything. यहाँ पे also I will put a percentile. Let's say I will put 10 here. Let me just see how it looks. Acha, for lower percentile I will have to obviously put a different color. So 10. Midpoint में हम 50 डाल देते हैं and let me keep these as white. I'm going to click on done. So guys, अभी देखिए, what is happening is it is highlighting those values for me which are within this range of cells, highest values and the lowest values. ठीक है ना? The top 10% and the bottom 10%. I can also do stuff like this here in this kind of data set. ठीक है? इसको आप थोड़ा explore करो for a practical data that you will have. It will make a lot of sense. ठीक है? One more thing that you can do is, let's say यहाँ पे company में मैं आ जाता हूँ. यहाँ पे let me see if I have the option here. So यहाँ पे I do not have the option here. एक second. I do not have the option of duplicate here. However, we can give you a formula that can also help you check कि आपका डेटा में कौन कौन सा डुप्लीकेट वैल्यूज है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिख के रखे हैं. ठीक है? This is not today's topic, but I think this is important because I have had so many people come and ask how to basically highlight duplicate values within conditional formatting. So एक तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो कस्टम फॉर्मूलाज है उसमें आप डाल सकते हैं. इफ नॉट, व्हाट यू कैन डू हियर इज, ये देखिए, ये जो एरे फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है ना, ये सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टॉप रो पे है कि नहीं है. अगर ये टॉप रो पे है तो ये यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग डाल देता है. उसके बाद ये चेक कर रहा है कि कॉलम सी में कुछ डेटा है कि नहीं. अगर कॉलम सी में कोई डेटा नहीं है तो बस ये ब्लैंक छोड़ देता है. उसके बाद इट इज चेकिंग कि जो काउंट ऑफ वैल्यूज है इन कॉलम बी, ठीक है, कॉलम बी का ही कोई सेल से वो मैच करता है कि नहीं. मतलब सो जस्ट लेट मी प्रेस एस्केप वंस एंड कंट्रोल जेड. ये देखिए, इट इज फर्स्ट टेकिंग this company 1 as a value. This company 1, it is, let's say it is going to copy like this and is going to control F and paste it here. It is going to check how many times this company 1 has appeared in this particular cell like this. अभी यहाँ पे आपके पास 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, that's a separate thing. But what I simply wanted you to understand is अगर company 1 इसमें repeat करता है, so the count will be more than 1. If the count is more than 1, then automatically it becomes duplicate. So that is the logic of count A as count if that we are using here. Okay? If it is greater than 1, then it is duplicate. Otherwise, it is nothing. So I'm going to give you guys this formula for those of you who stuck around
all the way up until now, you all can adapt this formula in any of your sheet, which will highlight all the duplicates like this. जहां जहां पे duplicate है आपके इसमें ये highlight हो जाएगा, ठीक है? And that brings me to end of today's class. Those of you who are here in this workshop, if it helps in any way, let me make a copy of this sheet, okay, and give it to you guys so that you can make a copy of this sample sheet as well, okay. This will help you already get a lot of pre-built conditional formatting and a lot of other things. So isme mein I'm simply going to just give me a second before you guys start making copies of this. Let me just reset this, and yeah, that should be okay. If any of you think that this sheet is going to help you, feel free to just click on the link in the chat box and make a copy of it. ठीक है, काफी सारा यहाँ पे array formulas का भी examples हैं. These array formulas again we have discussed in detail if you have been following our MIS Saturday workshops, ठीक है ना. मैं एक बार MIS Saturday workshops का जो past topics that has been covered वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ. देखिए, so we have been doing this since 29th of May 2021. Okay, we have covered array formulas, we have covered how to use pivot tables, we have covered creating simple workflow automations. Okay, this is a very interesting one. This was very close to my heart. Okay, how to document and clean dates. अगर आपके पास काफी सारा dates हैं which are not in the correct format, month और day ऊपर नीचे हो गया, तो how to quickly clean those, ठीक है ना. If function, how to use VLOOKUP, Google Forms कैसे सेटअप करना है बेसिक से लेके I wouldn't say एडवांस तक, बट सारा ऑप्शंस हमने मोर और लेस इस पे कवर करके रखे हैं, ठीक है. Creating and monitoring security by using Google Forms. If you have a security guard who's going around your premises and you want him to basically take a picture every certain time frame में, how can you document that in a decent FMS? So that you will get it here. Basics of macros in Google Sheets. We have just shown you very basics of macros here, jahan pe how you can record a macro and play that over and over again. We have just introduced you to the idea of macros. फिर tips and tricks, we had spoken about quite a few tips and tricks which will be available here. And the last thing that we had done was date related formulas, which if you come to formula.coitbox.com, यहाँ पे जो भी date related ये था, that is what we had done last. So let me see if all of this can actually be pasted in the chat. Well and fine. Otherwise, अच्छा, सारा चला गया. So you can maybe just copy this chat and keep it. Or the best way I would say is go to Sanjeev Sir's YouTube channel and you will get all the videos. Like I said in the beginning, if you think we have earned your subscription, please do subscribe to it. I personally do feel that it can really help a lot of you. You can type itbx.in/YT to get to Sanjeev Sir's channel. We have a ton of content in this, and I honestly feel people who are on the web making silly videos getting millions of views, I personally feel Sanjeev Sir deserves way better. So just 5.56 thousand subscribers is very low. He definitely deserves 1 million. ठीक है ना. So would really request you guys to maybe be patrons for us, pass on this word, because we are only trying to at least in the MIS Saturday this thing, we are definitely just trying to help you out. Obviously we have commercial interest where we have our bigger workshops like Tech Mastery Advanced, where we give out 260 odd different tools, and that is obviously it's a paid subscription model. But
yeah, I mean, if you think we have earned it, so yes, please do give it a thumbs up and like. And what else? Any other questions? I can take any other questions that you have. Abhishek Jha, if you're here, I can take your question. I am pretty much, I would say, done for the year. The next MIS Saturday workshop is going to be on 8th of January 2022. Okay. And the topics are going to be filter. ठीक है ना? Filter formula, sort, filter and sort combined. This is going to be interesting. So we're going to start the new year with something really interesting. Those of you who have access to this, you can directly see the videos from here. I will also have a lot of personal experiences to share and sheets to give out during this filter workshop. Or kya? And if you all want the rest of the dates, I am putting all these dates in the chat. We basically do MIS Saturday every alternate Saturday. Okay. Thank you so much. Thank you so much for all the people who have already subscribed. Okay. So that was that. Guys, अगर कोई question है तो पूछ लो, बेशक पूछ लो, because if you do not ask, इसमें आपका घाटा है. मेरा कुछ नहीं जाता. So please feel free to ask any question. If you have sheets, very honestly, today was an off day for me. ठीक है ना? My second Saturdays are actually off, but we had this thing and I like interacting with you guys. If you have any sheet that you want to talk to me about, I can definitely spare 15-20 minutes and help you all with anything practical. If not, I will take your leave. Okay. Anyways, if there isn't anything, then for now, I will say tada, goodbye. Have a good weekend. And since I will not be seeing you guys on the MIS Saturday, workshop, I will, wish you guys an advance Merry Christmas and Happy New Year. Hazira, I will be in touch with you. Hazira is somebody I have, worked with previously. Satish, thank you so much for joining. Satish has almost become a buddy. He's been part of our advanced FMS, and also he had done the DME workshop. So thank you so much, Piyush. Thank you. Okay. Chaliye, so I'll take your leave. Stay safe, guys. Stay indoors. I must say, stay indoors. Yeah. Bye-bye. Thank you. Thank you so much, Satish. Take care, guys. Have fun.